اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اچھا، مشق نمبر 4 آتے ہیں۔ ابھی مین لیسن ہم لوگ کیے نہیں، اس کو کرنے کے بعد مین لیسن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشق نمبر 4 ہے، اور 4 میں کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا جو ہم لوگ کرتے وقت آ رہے ہیں، بس کچھ الفاظ ہے، کچھ لفظ کو لینا، اس کو کیا کرنا ہے؟ پلورل میں بدل دینا ہے۔ اقرأ المثال، مثال کو پڑھیے، یعنی کہ مثال جو یہاں پہ دیا اس کو پڑھیے، اور کیا کرنا ہے؟ ثم حول، پھر حول چینج کیجیے جملہ کو الاتیتی مثلہ، مثال کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ جملے کو چینج کرنا ہے۔ جیسے ایگزامپل میں جیسے جملے کو چینج کیا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے، ٹھیک ویسے ہی کیا کرنا ہے آپ کو اس میں بھی چینج کرنا ہے۔ سینٹینسز 3 جملہ ہے، اس کو چینج کرنا ہے مثال کے حساب سے، جیسے مثال کو چینج کیا گیا ویسے اس جملے کو بھی کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں، اب طالب شاگرد ذهب الى المطعم، اب طالب ذهب شاگرد گیا الى المطعم، مطعم مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطعم ریسٹورینٹ، ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے؟ ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے؟ ایئرپورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مپار، ٹھیک ہے؟ مپار، ٹھیک ہے؟ مپار، مطعم یعنی کہ ریسٹورینٹ، طعام، طعام سے نکلا ہے مطعم، ٹھیک ہے؟ مطعم، تو ریسٹورینٹ گئے ہیں، دا اسٹوڈنٹ وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے؟ کھانے والا ہوٹل، ٹھیک ہے؟ جہاں کھانا کھاتے ہیں، اور رہنے والا ہوٹل کیا ہوتا ہے؟ فندق، ٹھیک ہے؟ فندق۔ اب طالب شاگرد، اس کا لٹرل یعنی کہ ورڈ ٹو ورڈ، لفظ با لفظ ترجمہ کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا، طالب یعنی کہ اب طالب یعنی کہ دا اسٹوڈنٹ ہی وینٹ، ٹھیک ہے؟ ٹو دا ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے؟ ہی وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ، یہ لفظ با لفظ ترجمہ ایسے ہوگا، دا اسٹوڈنٹ شاگرد ہی وینٹ وہ گیا ریسٹورینٹ، ریسٹورینٹ کی طرف، یا ترجمہ سیدھا کریں گے ریسٹورینٹ گیا، ٹھیک ہے؟ ایسا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو شاگرد کا جو ذکر 2 بار ہو رہا ہے، ایک تو دا اسٹوڈنٹ ہو رہا ہے اور ایک بار ہی آ رہا ہے، یعنی کہ وہ گیا، ٹھیک ہے؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ شاگرد کا ذکر 2 بار ہے؟ ایک بار اسٹوڈنٹ شاگرد، ٹھیک ہے؟ شاگرد وہ گیا ریسٹورینٹ، وہ گیا ہوٹل کھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مطلب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاگرد کا ذکر 2 بار، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جملہ کو ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ایسے ترجمہ کیا ہوگا؟ جنرل ترجمہ اس کا، شاگرد گیا ریسٹورینٹ، شاگرد گیا ریسٹورینٹ، یعنی کہ وہ شاگرد، خاص پرٹیکولر شاگرد وہ گیا ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا جواب آپ نے دیا ہے، صحیح۔ ذہبہ میں چھپا ہوا ہے ہی، یعنی کہ جو یہ ہوا ہے وہ ذہبہ کے اندر چھپا ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 بار۔ اب طالبو یعنی کہ شاگرد، ذہبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا، ذہبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا، تو ذہبہ کے اندر میں آپ کو وہ دکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے اندر میں ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو عربی کے لیے وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہوا، تو ہوا ذہبہ کے اندر چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، فاعل ہے۔ ذہبہ کا فاعل کیا ہے؟ ہڈن ہے، مستتر ہے، ہڈن ہے، وہ دکھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دکھ نہیں رہا ہے۔ کون گیا؟ وہ ہوا، وہ گیا، وہ دکھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا، اگر نہیں بھی آیا سمجھ میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایڈوانس کانسیپٹ ہے، اگر کچھ کہیں پر پرابلم ہے آپ کو تو کوئی بات نہیں ہے، یہ پھر سے ریپیٹ کرو، انشاءاللہ بعد میں آئے گا، یہ چیزیں آئیں گی۔ اب طالب شاگرد، سمپل ترجمہ کیا ہوگا؟ شاگرد گیا ریسٹورینٹ، یعنی کہ کھانے والا ہوٹل، ٹھیک ہے؟ اب طالب ذهب الى المطعم، اور لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر سے دوہرا دیتے ہیں، شاگرد یعنی کہ وہ شاگرد، دا اسٹوڈنٹ، ذهب مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا، ریفرنس ہے ذهب کے اندر میں وہ لفظ یعنی کہ ہوا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوا وہ سے مراد کون ہے؟ اب طالب، اب طالب شاگرد گیا، شاگرد وہ گیا ریسٹورینٹ، شاگرد وہ گیا ریسٹورینٹ، یہ لٹرل ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے۔ سمپل ترجمہ کیا ہوگا؟ شاگرد گیا ریسٹورینٹ۔ یہ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ باریک کچھ نقطہ بیان کر رہے ہیں، یہ کچھ سیٹلٹیز ہے، کچھ کچھ باریک باتیں ہیں یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی۔
ठीक है, शागिर्द वो गया रेस्टोरेंट, और सिंपल तर्जमा क्या होगा, शागिर्द गया रेस्टोरेंट। ठीक है, तो अत्तालिबु ज़हबा इलल मत्अमी, द स्टूडेंट ही वेंट टू द रेस्टोरेंट। ठीक है, ये लिटरल तर्जमा ऐसे हो रहा है। ठीक है, शागिर्द वो गया रेस्टोरेंट। ठीक है, लेकिन सिंपल तर्जमा बार बार हम कह रहे ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। ठीक है, इजी तर्जमा क्या होगा, शागिर्द गया रेस्टोरेंट, द स्टूडेंट वेंट टू द रेस्टोरेंट। ठीक है, अच्छा अब एक बार जमा करते हैं इसका। अब इस लफ्ज का क्या करते हैं, इसको प्लूरल, मिसाल वही बताया, बयान किया गया ना, अब प्लूरल करना है। किसको प्लूरल करना है? अच्छा, ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस आपको दिख इस्मिया, रहा है, जुमला हाँ इस्मिया। जुमला इस्मिया। कोई कहेगा क्यों जुमला इस्मिया है, तो क्या जवाब देंगे? ये इसमें से शुरू हो रहा है जुमला। बहुत अच्छा, ये जुमला इस्म से शुरू हो रहा है, इस्म से, तो लिहाजा ये जुमला इस्मिया है। ठीक है, कोई कहेगा फेल भी तो है इसमें, लेकिन हम कहेंगे क्या कि फेल है तो फेल शुरू में तो नहीं ना है, फेल शुरू में नहीं है, तो जुमला शुरू किससे हो रहा है? इस्म से। तो अब तालिब मुब्तदा है यहाँ पे, अब तालिब क्या है? मुब्तदा। तो यहाँ पे चेंज करना किसको है हम लोग को? सब्जेक्ट को, यानी कि मुब्तदा को चेंज करना है। ठीक है, तो अब तालिबु मुब्तदा, इसको चेंज करना है। यहाँ पे क्या था, एक शागिर्द वो रेस्टोरेंट गया, अब यहाँ पे शागिर्द को ये बदलना है, तो ये अब तालिब क्या हो जा रहा है? अब तुल्लाब, शागिर्द, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। ठीक है, शागिर्द। अब आप देख रहे हैं, अब ज़हाबा नहीं कह सकते, क्योंकि ज़हाबा का मतलब क्या था वो गया। अब क्या लाना पड़ेगा आपको? ज़हबू। ठीक है, ज़हबू, ये गर्दान याद है ना, कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन है, वर्ब कॉन्जुगेशन जो हम लोग किए थे एग्जाम के जस्ट पहले पहले। तो ज़हबा मतलब वो गया। अच्छा, ज़हबा मतलब क्या है? वो दोनों गए। और ज़हबू मतलब क्या है? ज़हबू, ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है। ज़हबू मतलब वो सब गए, दे ऑल वेंट, वो सब गए, दे ऑल वेंट। ठीक है, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ये याद है ना? तो ज़हबा मतलब हो रहा है क्या? ही वेंट। इसको समझिए ध्यान से, अगर आप लोग भूल गए तो। ठीक है, ज़हबा मतलब क्या हो रहा है? ही वेंट। ज़हबा मतलब क्या हो रहा है? दे से मुराद क्या? दोनों, दे टू वेंट। ज़हबू से मुराद क्या? दे ऑल वेंट। ठीक है, तो दे टू, ये जो टू लफ्ज है, वो दोनों गए, ये टू है इसमें क्या कहीं पर? ज़हबा, वो दोनों गए, कहाँ है ये टू? कि दो आदमी गए हैं। अलिफ, 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 अलिफ सही। दे ऑल यानी कि वो सब, तो ये ऑल है यहाँ पे क्या कि वो सब गए हैं। मोर देन टू, वाओ, मोर देन टू। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये दमीर है ये सब भी। ठीक है, ये और ये फाइल है, करने वाला है। ज़हबा में अलिफ फाइल है, ज़हबू में वाव फाइल। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो सिंगुलर था ही, वो गया, इसमें ही कहीं पे है क्या? ही है, दिख रहा है आपको कुछ वर्ड है ही के लिए? अलिफ वाव नहीं है, तो इसका मतलब ही जो है इसके अंदर क्या है? हिडन है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? फाइल क्या है? ही फाइल है, फाइल क्या है? मुस्ततिर, मुस्ततिर, बहुत अच्छा, मुस्ततिर हिडन है। वो फाइल एक्चुअली में क्या हुआ है? वो हुआ है, वो इसके अंदर में क्या हिडन है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब वापस आते हैं क्या, यहाँ पे ज़हबू हमें करना पड़ा। यहाँ पे अब तुल्लाबू, जैसे हमने इसको जमा किया तालिब को, तो तुल्लाबू हो गया, और अब ज़हाबा को भी क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा। ज़हाबा क्या हो जाएगा? ज़हबू, क्योंकि रेफरेंस अब किसके बारे में है? ये प्रोनाउन किसके तरफ जा रहा है? प्लूरल की तरफ जा रहा है ना। द स्टूडेंट्स दे ऑल वेंट टू द रेस्टोरेंट। ठीक है, शागिर्द रेस्टोरेंट गए, यानी कि बहुत सारे शागिर्द मोर देन टू रेस्टोरेंट गए हैं। ठीक है, ठीक है तो ये समझ में आया आपको? चेंज करना पड़ा हमें। अब तालिबु ये मुब्तदा था, इसको चेंज किया हमने किसमें? प्लूरल में। और उसके साथ साथ ये जुमला, ये फेल है, वो फेल को भी चेंज करना पड़ा। ये फेल सिंगुलर के लिए था, अब ये प्लूरल के लिए, इसको भी चेंज करना पड़ा। द स्टूडेंट्स दे वेंट, द स्टूडेंट्स दे वेंट। इसका भी तर्जमा है लिटरली क्या होगा? वर्ड टू वर्ड, द स्टूडेंट्स, शागिर्द, ज़हबू वो सब गए रेस्टोरेंट।
ये लिटरल तर्जुमा वर्ड टू वर्ड। शागिर्द वो सब गए, शागिर्द के बारे में 2 बार जिक्र आ रहा है, एक शागिर्द खुद और एक वाव। लेकिन सिंपल तर्जुमा क्या होगा, शागिर्द गए रेस्टोरेंट, माने सारे शागिर्द यानी कि मोर देन 2 शागिर्द, द स्टूडेंट्स वेंट टू द रेस्टोरेंट। ये सिंपल तर्जुमा, ठीक है। इस हिसाब से ये एग्जाम्पल दिया गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इसी पैटर्न पे इसी तरीके से क्या करना है, आपको चेंज करना है, इसी अंदाज में क्या करना है आपको चेंज करना है इन जुमलों को भी। अब तालिबु जलसा फिल फस्ली, अब तालिबु इसको पढ़ना है आपको, ट्रांसलेट करना है, फिर इसको प्लूरल बनाना है आपको, ठीक है। इसको पढ़ना है और ट्रांसलेट करना है और फिर क्या करना है, इसको प्लूरल करना है आपको। अभी जो है माइक को हम ऑफ कर दे रहे हैं आप लोगों का, और जो उसको जिसको जवाब देना है वो हैंड रेस करेंगे आप में से, ठीक है। जिसको जवाब देना है वो हैंड रेस करेंगे, वो जवाब देंगे, ठीक है, जिसको जवाब देना है, ठीक है। और जिन्होंने हैंड रेस किया वो हम अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। तो आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। अत्तालिबु जलसा फिल फस्ली, इसका प्लूरल होगा अत्तुल्लाबु जलसू फिल फस्ली। ठीक है, बहुत अच्छा। ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, अब तालिबु जलसा फिल फस्ली का? द स्टूडेंट वेंट टू द क्लास, और प्लूरल में हो जाएगा द स्टूडेंट्स वेंट टू द क्लास। ठीक है, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक, सही, ठीक है। तो अब तालिबु को हमने जमा किया तो ये क्या हो गया, अब तुल्लाबु, ये तो इजी है। अब जैसे अब तुल्लाबु हमने किया तो शागिर्द बैठा क्लास में, द स्टूडेंट सैट इन द क्लास, द स्टूडेंट सैट इन द क्लास, या इसको ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड, द स्टूडेंट ही सैट इन द क्लास, क्योंकि जलसा का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ही सैट। तो तर्जुमा क्या हो रहा है इसका, द स्टूडेंट ही सैट इन द क्लास, ठीक है। लेकिन ऐसे तो साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग यही हो रहा है, ठीक है। ज्यादा फोर्स है ऐसा तर्जुमा करने से, ठीक है, ट्रांसलेट करने से। तो सिंपल तर्जुमा इसका किया जाता है क्या, द स्टूडेंट सैट इन द क्लास, ठीक है, सिंपल तर्जुमा ऐसे ही। तो लेकिन एक्चुअली में ही सैट दो बार स्टूडेंट का जिक्र है, द स्टूडेंट और ही के अंदर ही में भी है। खैर इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत बारीक बात है, सटलिटी है ये, तो ये जानने की जरूरत अभी फिलहाल इतना बारीक। अभी सिंपल तर्जुमा कीजिए, शागिर्द बैठा क्लास में। अब इसका अब तालिब की जमा तुल्लाब, और जलसा को भी अब जमा करना पड़ेगा, उसका जमा गर्दान क्या होगा, जलसू हो जाएगा, ठीक है, जलसू हो जाएगा, जलसू, जलसू फिल फसली, जलसू फिल फसली, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद ये करना है आप में से, क्या करना है, इसको पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है और फिर प्लूरल बनाना है इसका। हाँ, कौन बनाना चाहेगा इसको? जी, आपने हाथ रेज किया, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। अल मुदर्रिसु खरजा मिनल मदरसती। ठीक है, ट्रांसलेशन। The teacher went to from minal केम आउट, from खराजा, kharaja came out minal madrasa from the school. ठीक है, करेक्ट। अब आपको प्लूरल बनाना है इसको, प्लूरल। अल मुदर्रिसूना खरजू मिनल मुदर्रसती। ठीक है, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। अल मुदर्रिसूना, मुदर्रिस की जमा है, और खराजा को भी फिर अप्रोप्रिएशन, ये सब खबर है खराजा, तो खराजा को भी आपको क्या करना पड़ेगा, खराजू करना पड़ेगा, खराजू, इस तरीके से, खराजू मिनल मदरसती, ठीक है। और अत्ताजिरु ज़हबा इला सूक, ये सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं अपने, अत्ताजिरु या घर में आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पार्ट हुआ। तो अब ये पार्ट करने के बाद में, अच्छा एक और होमवर्क रहेगा आपका, क्या ये सब भी होमवर्क है, इसको क्या करना है आपको, आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर, अभी हम लोग मेन टेक्स्ट लेसन अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो आपको एक नंबर 2 आपको करना है, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो होमवर्क में करना है, कॉपी में करें या किताब में करें। और नंबर 5 क्या करना है आपको, इसमें हरकत लगाना है, इसमें क्या करना है आपको, हरकत लगाना है। ये आप कॉपी में लिखेंगे,
یہ بک میں کیجیے تو زیادہ اچھا ہوگا, بک میں دیا ہوا, لیکن آپ کو سمجھنا بھی ہے. آپ حرکات جیسے فرسٹ حرکات کیا لگائیں گے, الطلاب, ٹھیک ہے, فل فصلی, یہ حرکات لگائے نا, یہ آپ کو حرکات واولس لگانا ہے, یہ ہوم ورک رہے گا. اور ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ ٹرانسلیٹ اگر اس کو آپ اورلی کر لیجئے گھر پہ ہی, اس کو حرکات لگائیے. اگر آپ چاہیں تو ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں, لکھ لیں انگلش میں یا اردو میں جیسا بھی ہو, یا لکھنا نہیں چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کو جملہ کا میننگ سمجھ میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن لکھنا ضروری نہیں ہے, حرکات لگانا ضروری ہے, لیکن ٹرانسلیشن کو یہ کیا چل رہا ہے اس جملے میں اس کو سمجھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو حرکات آپ لگا لیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میننگ کیا ہے تو آپ پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے. گروپ میں آپ میسج کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, یا میسج کر لیجیے گا پرسنل, تو آپ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اس کا میننگ کیا ہوگا. ہر ایک سینٹینس جو آپ کو دکھ رہا ہے سب میں آپ کو کیا کرنا ہے, حرکت لگانا ہے. جیسا من ہاؤلائی, ٹھیک ہے, الاولاد, کون ہے یہ سب لڑکے, یہ سارے لڑکے کون ہیں. اہم, کیا یہ, ابناؤ کا, کیا یہ تمہارے بیٹے ہیں. جواب اللہ, نہیں. ہم ابناؤ اخی, نہیں یہ سارے میرے بھائی کے بیٹے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, حرکت لگانا ہے آپ کو پین سے یا پینسل سے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, میننگ ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ کو. پھر دماغ میں کم سے کم اپنے ذہن میں یہ میننگ کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ پورا جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو ہوم ورک میں کرنا ہے. یہ نمبر 5 یہ کر لیں گے آپ پرفیکشن لیول میں آپ پہنچ جائیں گے. آپ کا کانسیپٹ پرفیکٹ ہو جائے گا, ایک دم اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ کانسیپٹ ایک دم بیٹھ جائے گا آپ کے دماغ میں, سنگولر پلورل کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ ہوم ورک میں کریں گے, اور نیکسٹ کلاس میں جو ہے پھر اس میں سے کچھ ہم لوگ جو ہے نا وہ کر لیں گے سلیکٹڈ, جو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے یا ایزی نہیں ہے تو ایزی ہے. کچھ اگر تھوڑا ڈاؤٹ, کچھ اگر کسی میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ 6 نمبر بھی آپ کر لیں. کیا کرنا ہے, پلورل ناؤنس ہے, ایڈجیکٹیوز ہے, یعنی کہ کچھ نام ہے یہاں پہ, صفات ہے, اس کو کیا کرنا ہے, پلورل آپ کو بنانا ہے یہاں پہ. نمبر 6 جمع لکھنا ہے, کبیرن, کبارن, مسلم کی جمع, رجلن کی جمع. بہت ایزی ایکسرسائز, اس کو بھی کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کر لیں گے تو بہت کانسیپٹ آپ کا اچھا ہو جائے گا. یہ پارٹ اے جو ہے پھر ہمارا یہ پورا ہو جائے گا. اب تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس, تو اب ایک جو مین لیسن ہے ایک ہی پہ, زیادہ بڑا نہیں ہے, وہ فٹ فٹ ہو جائے گا. اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کر لیتے ہیں, جو مین لیسن ہے, ٹھیک ہے. یہ الگ الگ پارٹ میں ڈیوائڈ ہے یہ ایک چیپٹر, ٹھیک ہے. لیسن پارٹ اے, پارٹ بی, پارٹ سی, تو ہم لوگ آج پارٹ اے کر چکے ہیں. یہ 13واں سبق ہے 13 کا. یہ پارٹ الف دیکھ رہے ہیں, حمزہ, یہ فرسٹ پارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگ کرتے ہیں من ہاؤلائی فتیۃ, یہ جو ہے چیپٹر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ فوٹو ووٹو ہٹا دیتے ہیں, ایسے منہ نہیں بنانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو من ہاؤلائی الفتیۃ الطوال یا علی, ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن کون کرنا چاہے گا, ہاتھ اٹھائیے. من ہاؤلائی الفتیۃ, من ہاؤلائی الفتیۃ الطوال یا علی, ٹھیک ہے. جی ٹرانسلیشن رحیلہ نظام شیخ, ٹھیک ہے. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے, پڑھنا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. من ہاؤلائی الفتیۃ طوال یا علی, بہت اچھا یا ٹرانسلیشن. علی, ٹھیک. کون ہے یہ نوجوان, کون ہے یہ, اے علی کون ہے یہ لمبا نوجوان. ہاں, لمبے نوجوان کون ہے یہ, بہت اچھا, ٹھیک ہے, صحیح, کریکٹ, بہت اچھا, بارک اللہ فیک. تو من ہاؤلائی الفتیۃ, دیکھ رہے ہیں نا, یہ کوشچن جو ہے اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہوگا, ایسے ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا اس طریقے سے. پہلے پڑھنا ہوگا صحیح سے کیا ہے, اس کے بعد ٹرانسلیشن دماغ میں سمجھنا ہوگا اس کو. من ہاؤلائی الفتیۃ, ہو آر دیز ینگ مین, ہو آر دیز ٹال ینگ مین, کون ہے یہ لمبے نوجوان. یا علی, یا علی, علی میں تنوین رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جب یہ یا کے بعد آتا ہے تو تنوین جو ہے اس کا ہٹ جاتا ہے, علی ہو جائے گا. یا بلالو, یا حامدو, یا مدرسو, یا شیخو, ٹھیک ہے. اچھا یہ کلیئر ہے. تو ہاؤلائی جمع کس کی, ہاذا کی جمع ہے. فتیتن کس کی جمع ہے, کون سے لفظ کی جمع ہے, ینگ مین,
फता की जमा है, ठीक है। अल फता अगर ऐसे लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा अल फता। अल फता यंग मैन, एक आदमी। तिवाल का सिंगुलर क्या है? तवील, ठीक है। तो जवाब आया कौन है ये लंबे नौजवान। अब जवाब दिया जाए, सवाल आए, जवाब दिया जा रहा है, हुम तुल्लाबुन, दीज आर, ठीक है, या दे आर स्टूडेंट्स। तालिब की जमा तुल्लाब। जुदुदुन जमा किसकी है? जदीद। जदीद की जमा क्या है? ये जुदुद। तो दीज आर या दे आर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। दे आर न्यू स्टूडेंट्स या दीज आर न्यू स्टूडेंट्स, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में करेंगे तो दे आर न्यू स्टूडेंट्स होगा, उर्दू में करेंगे तो ये सारे ये लोग ये नए स्टूडेंट हैं, ये नए शागिर्द हैं, ठीक है। के बाद मिन ऐना हुम, मिन ऐना मतलब होता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से। मिन ऐना हुम यानी कि कहाँ से हैं हुम ये सब। मिन ऐना हुम कहाँ से हैं ये सब, ये सारे कहाँ से हैं। फ्रॉम वेयर आर दीज, ठीक है। फ्रॉम वेयर आर दे, ये लोग कहाँ से हैं, ठीक है, ये लोग कहाँ से हैं। अब जवाब आ रहा होम, ये दे आर, ये सारे होम मिन अमेरिका, होम मिन अमेरिका, ठीक है। ये अमेरिका से हैं, ये अमेरिका से हैं, ठीक है। अमेरिका लफ्ज जो है मिन हर्फ जर है, लेकिन अमेरिका में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये एंड हो रहा है अलिफ पर, और अलिफ में तो कुछ हरकत आ नहीं सकता ना। अलिफ में फतहा नहीं आ सकता, दम्मा नहीं आ सकता, कसरा नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। तो जाहिर सी बात है कुछ अलामत इसमें नजर नहीं आ रहा। तो अमेरिका स्टेज अमेरिका, अमेरिका अमेरिका ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हर्फ जो मजरूर मानेंगे इसको, लेकिन इसमें आपको अलामत नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अलिफ है ना, अलिफ पर तो कसरा दे नहीं सकते। कसरा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अलिफ पर कसरा नहीं आ सकता, तो वैसे ही रहेगा। तो जो लफ्ज अलिफ पे खत्म होता है उसका अलामत, उसका हालत आपको जाहिरी तौर पर चेंज नहीं होता, ठीक है, नहीं दिखता चेंज हुआ हुआ। अच्छा, अहुम यानी कि ये सारे नए स्टूडेंट्स जो है, अहुम जुमलाउका, अहुम क्या ये सारे, क्या ये लोग, यानी कि अहुम क्या ये, जुमलाउका, जुमलाउका इसका तर्जमा क्या होगा? जुमलाउका, जुमलाउका ट्रांसलेशन क्या होगा? जुमलाउका, हाँ अनम्यूट किया आपको। जुमलाउका, जुमलाऊ का मतलब क्या? आपके साथी, आपकी जी क्लास में। ठीक है, सही हम क्या ये आपके साथी हैं, ये सब। सही सही, बारकल्लाहु फीक, ठीक है। जुमलाउका मतलब होता है साथी, ठीक है। माने कि ये जो सारे नौजवान खड़े हैं, दो से ज्यादा, पूछा जा रहा है क्या ये तुम्हारे क्लासमेट हैं। जुमला का मतलब होता है क्लासमेट या कलीग। जुमला का मतलब सदीक नहीं होता, दोस्त नहीं होता। जरूरी नहीं कि सब क्लासमेट आपके दोस्त हो, है ना, सब ऑफिस में काम करने वाले कलीग आपके दोस्त हो, जरूरी नहीं, ठीक है। तो जुमला का बहुत लोग तर्जमा करते हैं दोस्त, तो दोस्त का माना सही नहीं, जरूरी नहीं कि हर जुमला, हर जमील, हर साथी क्या हो, वो दोस्त हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन, क्लासमेट या कलीग ये सही ट्रांसलेशन है, ठीक है। जुमलाउका, जमील की जमा है जमीलुन जुमलाउ, तनवीन नहीं लेता है, ठीक है। जमीलुन जुमलाउ, ठीक है। फकीरुन फुकराउ, इस तरीके से ये जमा है। तो क्या ये तुम्हारे साथी हैं, क्या ये लोग तुम्हारे क्लासमेट हैं, यानी ये लोग जो खड़े हैं, ये लोग जो हैं, क्या ये तुम्हारे क्लासमेट है? जवाब दिया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, जवाब आता नाम, यस, हाँ। हुम दीज आर, ये हैं, जुमलाई, ये मेरे क्लासमेट, जुमलाई मेरे क्लासमेट, मेरे कलीग, मेरे साथी, मेरे हम जमात। किताबी मेरी किताब, सैयारती मेरी गाड़ी, जुमलाई मेरे क्लासमेट्स, ठीक है। मुदाफ मुदाफ इलैहि है ये, जुमलाई मुदाफ मुदाफ इलैहि है। मुदाफ इलैहि का ये या मुदाफ इलैहि है, ठीक है, ये या मुदाफ इलैहि है, ठीक है। और ये मुदाफ जुमलाउ मुदाफ है, ये असल में जुमलाउ था, लेकिन ये या मुतकल्लिम जब भी आती है तो अपने पहले कसरा दे देती है, तो जुमलाई, ठीक है। ये सारे मेरे क्लासमेट हैं। होम ये सारे लोग हैं, माने दे आर फी फसली, फी फसली, दे आर इन माई क्लास, ये मेरे क्लास में है, यानी मेरे क्लास में पढ़ते हैं ये लोग। होम फी फसली, दे आर इन माई क्लास, ठीक है। ये लोग यानी कि मेरे क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर इन माई क्लास, फसली मतलब क्या हो गया? माई क्लास, ठीक है। फसली मतलब माई क्लास, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज्यादा नहीं बचा है। अहुम मुजतहिदूना, अहुम क्या ये सब, मुजतहिदूना, मुजतहिदूना मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती,
محنती, ठीक है. अहुम मुजतहिदूना, क्या ये लोग हार्ड वर्किंग मेहनती हैं. मुजतहिदूना, ठीक है, इसका सिंगुलर क्या है, ये जो जमा है ना, और ये कैसा जमा है, जमा तकसीर है, जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है, और इसका जो मुफरद क्या, वाहिद क्या है, ठीक है, इसका वाहिद क्या है, ठीक है. माइक को अनम्यूट किया गया है, इसका वाहिद क्या है बताइए. ये मुस्तहिदुना, हाँ, ये मुज़क्कर जमा सालिम। सही, जमा सालिम है, बहुत अच्छा, ये जमा सालिम है, जमा सालिम है. मुजतहिद की जमा है, सिंगुलर क्या है, मुजतहिदुन, ठीक है, मेहनती. पूछा गया क्या ये लोग मेहनती है, जवाब है नाम, हाँ. हुम, ये लोग, यानी कि दीज आर, ये हैं, ये मेहनती हैं. हुम मुजतहिदूना, हुम मुजतहिदूना, हुम मुब्तदा, मुजतहिदूना खबर, सिंपल सेंटेंस. हुआ मुजतहिदुन की जमा क्या है, हुम मुजतहिदूना, ठीक है. अच्छा, अब पूछने वाले ने पूछा क्या, मा अस्माउहुम, मा अस्माउहुम, ठीक है, मा अस्माउहुम, ठीक. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मा अस्माउहुम, मा अस्माउहुम, मा अस्माउहुम, ठीक है. उन सब का नाम क्या है? हाँ, उन सब का नाम क्या है, सही, ठीक है, उन सब का नाम क्या है. व्हाट आर देयर नेम्स, ठीक है. मा मतलब होता है व्हाट, क्या है. अस्माउहुम मतलब क्या है, देयर नेम्स, ठीक है, उन सब के नाम, देयर नेम्स. अस्माउहुम ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है, देयर नेम्स. जैसे किताबुहुम, देयर बुक, ठीक है, या कुतुबुहुम, देयर बुक्स, ठीक है. इस तरीके से मा अस्माउहुम, व्हाट आर देयर नेम्स, उन सब के नाम क्या है. अब जवाब आ रहा है अस्माउहुम, उन सब के नाम, यानी कि देयर नेम्स आर यासिरुन, ठीक है, यासिर, उन सब के नाम बताए जा रहे हैं, यासिर है, व जकरिया और जकरिया है, व मूसा और मूसा है, व अब्दुल्लाही और अब्दुल्ला है. चार नाम, ठीक है, यासिरुन व जकरिया व मूसा व अब्दुल्लाह, ठीक है, अब्दुल्लाही. मैंने चार लोग थे तो चारों के नाम बताए जा रहे हैं. एक यासिर है और जकरिया है और मूसा है और अब्दुल्ला है, ठीक है. तो ये समझ में आया आपको. अच्छा, अरबी का एक कायदा है ना, कि ये बता देते हैं आपको कि अरबी में ना वाव रिपीट करना पड़ता है. अगर उर्दू में पूछा जाए आपको इन सब के नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यासिर, ठीक है, जकरिया, मूसा और अब्दुल्ला. तो उर्दू में वाव बार बार रिपीट नहीं करते. इंग्लिश में भी क्या करते, यासिर कॉमा देते, यासिर, जकरिया, मूसा एंड अब्दुल्ला. वाव बाद में लगा, वाव का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन है ना, एंड. लेकिन अरबी में आप बार बार वाव लाना पड़ेगा आपको, ठीक है. यासिर, यासिरुन व जकरिया व मूसा व अब्दुल्लाही, ठीक है, वाव बार बार लाना पड़ता है, ठीक है. तो यासिरुन व जकरिया व मूसा व अब्दुल्लाही, चार लोग हैं, ठीक है. यासिरुन में आपको ये मरफू दिख रहा है, ठीक है. जकरिया में मरफू दिख नहीं रहा क्योंकि अलिफ पेंड और अलिफ में तो कुछ हरकत नहीं आ सकता. मूसा में भी अलिफ ही है ना, ये अलिफ है, यहाँ पे नुक्ता नहीं है, तो ये अलिफ मकसूरा है, तो ये भी अलिफ है, तो इस पर भी हरकत नहीं आ सकता, तो मरफू दिख नहीं रहा आपको, ठीक है. अब्दुल्लाही, अब्दुल्ला मरफू है, अब्दू ये मुदाफ है, अब्दुल्लाही क्या है, मुदाफ मुदाफ है. अब्दू मुदाफ, अल्लाह ही क्या है, लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैहि. चार नाम, यासिरुन व जकरिया व मूसा अब्दुल्ला. अब्दुल्ला कैसा नाम है, मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है. तो चार लोगों का जिक्र किया गया, ठीक है. और तो तर्जमा क्या होगा, उर्दू में तर्जमा हम बार बार और नहीं कहेंगे, उर्दू में यासिर और जकरिया और मूसा और अब्दुल्ला. उर्दू में यासिर, जकरिया, मूसा और अब्दुल्ला. इंग्लिश में भी यासिर एंड जकरिया एंड बार बार नहीं तर्जमा करते, तो लेकिन सिर्फ लास्ट में एंड आता है. लेकिन अरबी में वाव बार बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने देखा कि अस्मा जमा किसकी जमा, अस्मा इस्म की जमा है. इस्म की जमा क्या है, अस्माउन. इस्म की जमा क्या, अस्माउन. उसके बाद वमन, और वमन हाउलाए रिजालुल क़िसारु, और कौन है ये आदमी, क़िसार यानी कि ये छोटे कद के आदमी. हु आर दिस शॉर्ट हाइट मैन, यानी कि ये छोटे कद के आदमी जो जिनके हाइट कम है, ये कौन है.
ومن हाउलाए रिजालुल क़िसारु, and who are these men who are short height. ठीक है, क्या कहेंगे इसको, short heighted, सही वर्ड है इंग्लिश में क्या, ठीक है, लगता है गलत, कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए, ज़हन में नहीं आ रहा. वमन हाउलाए रिजालुल क़िसारु, ठीक है, who are these short men, ऐसे कह सकते हैं, चलिए, who are these short men. वमन हाउलाए रिजालुल, और ये छोटे कद के आदमी, ये सारे कौन है, वमन हाउलाए रिजालुल क़िसारु, ठीक है. रिजाल किसकी जमा, रजुलुन की. क़िसार किसकी जमा, कसीरुन. जवाब आ रहा, हुम हुज्जाजुन, ये सारे हाजी हैं, हुम हुज्जाज. हाजी किसकी जमा, हाजुन की जमा है. हाजुन की जमा क्या है, हाजी, ठीक है. तो जवाब आ रहा है, सवाल आ रहा है, मिन ऐन हुम, ये सारे कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर आर दे, मिन ऐन हुम. बअदुहुम, जवाब क्या आ रहा, बअदुहुम मिन अस्सीनी व बअदुहुम मिन अल याबानी. ये नया वर्ड है यहाँ पे, ठीक है. बअदुहुम, बअद क्या नया वर्ड है, बअदुन, ठीक है, न्यू वर्ड आया. और 4-5 मिनट क्लास करेंगे, थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन कंप्लीट कर लेते इसको, तो ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. नया लफ्ज क्या आया, बादुन. ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बाज लोग, बाज अरबी का वर्ड है, बादुन, ठीक है, बादुन. यानी कि इंग्लिश में कैसे तर्जुमा कर सकते हैं, सम. तो बादुहुम, हुम मतलब क्या होता है, वो सारे. तो बादुहुम क्या तर्जुमा हो जाएगा इंग्लिश में, ये मुदाफ इलैहि है, ऑफ आएगा बीच में. तो बाद मतलब हो गया सम, और हुम मतलब हो गया देम. तो इंग्लिश में क्या तर्जुमा हो जाएगा, बादुहुम का सम ऑफ देम, ठीक है. बादुहुम का तर्जुमा क्या हो जाएगा, सम ऑफ देम, ठीक है. बादुहुम सम ऑफ देम. पूछा क्या गया था, ये सब छोटे कद के आदमी, शॉर्ट हाइट मैन है. तो मिनैनहुम, कहाँ से ये सारे. अब जवाब आ रहा, बादुहुम बाज, मिन अस्सीनी, सीन माने चाइना, अस्सीनु था, मिन आने से, हर्फ जर आने से मिनस अस्सीनी हो गया. बाज चाइना से हैं, यानी कि सम ऑफ देम आर फ्रॉम चाइना. बादुहुम मिन अस्सीनी, और व बादुहुम, इसका मीनिंग पे सम ऑफ देम, और एंड सम ऑफ देम मिनल याबानी, जापान से हैं, एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम जापान, ठीक है. तो बाज ये नया लफ्ज आया, ये जो है ये मुदाफ है यहाँ पे, बादु, सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, हुम मतलब देम, ठीक है. यानी कि उनमें से कुछ जो है, उर्दू में कहेंगे क्या, बाज, उनमें से कुछ, या बाज लोग, बाज चाइना से हैं और बाज जापान से हैं, ठीक है. अच्छा, अब 2 लाइन बचा है बस, उसके बाद क्लास खत्म इंशाल्लाह. 2 मिनट भी बचा है हमारे पास में जूम का टाइमिंग में. ऐन अल मुस्तफ़ा व अस्दिक़ाउहु, ऐन कहाँ है, अल मुस्तफ़ा, अल मुस्तफ़ा किसी का नाम है, अल मुस्तफ़ा नाम है, ठीक है ना. अरबी का जो नाम होता है, हामिदुन, ज़ैदुन, बिलालुन, अलिफ लाम लेता नहीं है, लेकिन कुछ अरबी के ऐसे नाम है जो अलिफ लाम लेते हैं. अल मुस्तफ़ा से मुराद पर्टिकुलर एक शख्स का नाम है, प्रॉपर नाउन अल मुस्तफ़ा यहाँ पे, ठीक है. तो अरबी में अलिफ लाम, कुछ नाम होते हैं जो अलिफ लाम लेते हैं, जैसे कि हसन या हुसैन, ये अलिफ लाम के साथ आता है, अल हसन, अल हुसैन, ठीक है. और अल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा नाम भी अलिफ लाम के साथ आता है, अल मुस्तफ़ा. तो अल मुस्तफ़ा से मुराद क्या है, एक आदमी, एक शख्स, उसका नाम. तो पूछा जा रहा है मुस्तफ़ा कहाँ है, वेयर इज मुस्तफ़ा व अस्दिक़ाउहु, वेयर इज मुस्तफ़ा एंड हिज फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा और उसके दोस्त कहाँ हैं. ऐन अल मुस्तफ़ा व अस्दिक़ाउहु, मुस्तफ़ा और उसके साथ और उसके दोस्त कहाँ है, वेयर इज मुस्तफ़ा एंड हिज फ्रेंड्स. तर्जुमा समझ रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं समझने में. मुस्तफ़ा एंड वेयर इज मुस्तफ़ा एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है. यानी कि सवाल किसके बारे में किया जा रहा है, मुस्तफ़ा और उसके साथी, तो मुस्तफ़ा और उसके दोस्त, यानी 2 से ज्यादा है. जमा, जब अरबी में जमा क्या होता है, मोर देन 2, हाँ, 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि डुअल के लिए अलग वर्ड है अरबी में. अरबी में प्लूरल क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा के लिए आता है प्लूरल, ठीक है, जनरली. तो मुस्तफ़ा और उसके साथ, यानी कि 3 लोग हो गए मिनिमम, ठीक है, कम से कम 3-4 लोग हो गए. अब जवाब देना है कि कहाँ है वो लोग. ऐन अल मुस्तफ़ा, ऐन अल मुस्तफ़ा, ये अलिफ में खत्म हो रहा है, इसलिए दम्मा नहीं नजर आ रहा है, ये लव अलिफ में खत्म हो रहा है, इसलिए दम्मा नजर नहीं आ रहा, ठीक है. इसका एराब चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो जवाब दिया जा रहा है, ज़हबू, वो सब गए हैं, दे ऑल वेंट इलल मत्अमी, दे ऑल वेंट टू द रेस्टोरेंट, वो सब होटल रेस्टोरेंट, वो सब खाने के लिए गए हैं, खाने वाला होटल गए हैं. ज़हबू इलल मत्अमी, ज़हबू ये जुमला फ़िलिया हो गया, ठीक है. कौन गए हैं, वाव, वाव का मतलब है हुम, वो सब गए हैं, वो सब रेस्टोरेंट गए हैं, ठीक है. ये समझ में आ गया. ये चैप्टर हमारा, ये पार्ट ए जो है ये हो गया पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. और होमवर्क जो दिया गया आप लोग वो कर लेंगे, ठीक है, होमवर्क. और इसमें जो होमवर्क दिया गया वो समझ में आपको आ गया, ठीक है. और नए अल्फाज क्या कहते हैं इसमें,
الحقل آپ کر لیں گے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے بعد میں. اس کے بعد پارٹ بی یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کل ہم لوگ کریں گے. کل نیکسٹ کلاس ہے, ہاں کل 40 منٹ کا صرف کلاس ہوگا ہمارا, ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہوگا آپ گروپ میں کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ عربی سیکھنا آسان کرے, اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.